بنگالیوں کے ساتھ بھی, اگر ہندو بنگالیوں کے ساتھ بھی وہاں ہو رہا ہے, تو ریاست جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے بینیفٹ دیکھتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرے ہندو ہیں, یہ میرے مسلمان ہیں. اگر اتنا ہی تھا تو ریاستی لیول پہ بائیکاٹ کرتا پاکستان اسرائیل کا, ہر لحاظ سے اس کے الائز کا بھی کرتا. فلسطین کا دکھ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کیسے بارڈر کھول دے؟ ان کو کچھ نظر آ رہا ہے ان کے وہاں پہ کچھ اپنے اندر کھاتے, ان کے اپنے بڑے اسٹریٹجیکل معاملات ہیں. سر معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے, انہوں نے پولیٹیسائز کرنا ہے اس چیز کو کہ دیکھیں ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کھول رہے کہ دیکھیں یہ جو حسینہ کو ہٹایا گیا ہے اس لیے ایکسٹریمسٹ مولوی آئے ہیں, تو دنیا کی جو سیاست ہے اس میں ایک نئی دہشت گرد تنظیم یا کچھ ایسے معاملات, انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوا ہے, اس لیے نہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو ہے انڈیا ان کو اتنی آسانی سے تو نہیں, مطلب ان کو اتنی رہائش دے سکتا. ان کے لیے بھی ایک مطلب سیکیورٹی تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں, مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو عارضی طور پہ پناہ دے دیں, جس طرح پاکستان نے جو ہے افغان کمیونٹی کو یہاں پہ پناہ دی تھی, پھر پاکستان کے لیے وہ مسئلہ بن گیا. پھر پاکستان جو ہے ان کو ادھر جو ہے ہمارے یہاں دہشت گردی اور جو ہے اس طرح کے بلاسٹ ہونا, پھر پاکستان ذلیل ہو گیا ان کی وجہ سے. وہ پاکستان سے اگر وہ ہوتے شاید وہ کب کے کھول چکے ہوتے. اگر وہاں ہے تو ان کو کچھ اور پولیٹیکل بینیفٹ نظر آ رہے ہوں گے. تو وہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ خاص کر کے دیکھیں آپ کا اور میرا, مجھے نہیں نظر آتی کہ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم پنجابی ہیں اور اس پاکستان میں سب سے زیادہ ایک عجیب و غریب قوم, برائلر سے بڑھ کے قوم ایک پنجابی قوم ہے. جو مسلمان بننے جاتی ہے تو سعودی گود نہیں اٹھاتا, انگریز بننے جاتی تو انگریز منہ نہیں لگاتا, کالی چمڑی میں گوڑا. اردو کرنے جاتے, اردو کی سب سے زیادہ خدمت کتنے کی ہے؟ پنجابیوں نے کی ہے سب سے زیادہ. اردو بھی نہیں بن پاتے, اپنی مادری زبان کو عزت بھی نہیں دے پاتے. جیسے پاکستان آزاد ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی بات یہ کی تھی کہ جہاں پہ جو اقلیت ہے نا ان کا خاص خیال رکھا جائے گا. تو وہاں پہ بھی بنگلہ دیش کو ایک نیشن کے طور پہ جو ہے نا ایک قوم کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو اقلیت ہے وہاں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ ہمارے مسلمانوں کی روش بھی ہے. آپ ہمارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھ لیں, پھر ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اور جو ہے جس طرح ہمارے جو فاتحین جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے جو بھی جگہ فتح کی ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, انہوں نے جو ہے جو ان کی اقلیت تھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے کوشش کی ہے کہ اقلیتوں کو جو ہے تحفظ دیا جائے, پہلی پریورٹی ان کی وہی تھی. اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے. بنگلہ دیش کی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر پہنچ گئی ہے. اس بارڈر کی اگر ہم بات کریں تو 4000 کلومیٹر تک یہ لمبا بارڈر ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے بارڈر پر پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پر بی ایس ایف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بارڈر کراس کرنے دیا جائے, ہمیں ندی جو ہے کراس کر کے انڈیا آنے دیا جائے. لیکن بی ایس ایف جو ہے انہیں روک رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس طرح ہم آپ کو بارڈر کراس کرنے نہیں دے سکتے, بات چیت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا جانا چاہ رہی ہے, انہیں بارڈر کراس کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اسی مدعے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک پاکستانی نوجوان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. سر اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں پہ جیسے ہی شیخ حسینہ واجد انڈیا روانہ ہوئی, انڈیا نے انہیں پناہ دی, اس کے بعد ہندو کمیونٹی کے اوپر بنگلہ دیش میں اٹیک کیے جانے لگا, وہاں پہ ہندوؤں کے گھروں کو, ان کی دکانوں کو جلایا گیا. اب جو وہاں پہ اس طرح کے ماحول حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہندو کمیونٹی وہاں پہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی, لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں وہ جو کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر پہنچ گئی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں بارڈر کراس کرنے دیا جائے اور وہ انڈیا چلے جائیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ جب کوئی ایسی تحریک جہاں نیو لبرلسٹ معاملات ہوں, جہاں پہ ایک طرف چائنا ایک طرف انڈیا ہے, باقی کے امریکن جو ہے وہ سی کو لے کے, جو چائنا کے روٹس کو لے کے معاملات ہیں, ایک لٹل کولڈ وار ہے, ان تمام فیکٹر کو دیکھے بغیر اور اس کے پیچھے ان کو اسٹڈی کیے بغیر, کیونکہ دیکھیے اب آپ کوئی ایک چھوٹے سے دیش میں نہیں رہتے, آج کل آپ ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس گلوبل ولیج کے ہر فیکٹر جو ہے نا ان کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کے پراپر جو ہے وہ آپ کے اس خطے میں شیئر ہولڈنگ ہے آپ کی, اسٹریٹجکلی ہو, اکنامکلی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ سوشولوجیکلی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ پھر ریلیجیس بیس, ایتھنکسٹی یا جس طرح بھی مرضی آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں وہ ہے. اب جب جو تحریک وہاں اٹھتی ہے, اور وہ تحریک اگر اٹھتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس تحریک اٹھنے کے لیے وہاں پہ ایسا ماحول تھا سازگار,
हसीना वाजिद गलत थी, लेकिन क्या वो इतनी गलत थी कि उसने अपने देश में नौजवानों को इतना हक दिया था कि वो पॉलिटिकली कॉन्शियस थे? आप ये सवाल नहीं रेस कर रही, आप ये बात नहीं कर रहे। और जब ये तहरीक उठती है और ये तहरीक का कोई सिरपाव नहीं मिलता, तमाम नौजवान मिलते हैं, कोई पीछे पार्टी नहीं, बाद में पता लगता है अच्छा जी ये पार्टियों के फैक्टर हैं, ये लोग जो हैं इसको इस तहरीक की, देखिए तहरीक लोगों से बनती है, ठीक है, या तहरीक चलते चलते ख़त्म होती है या तहरीक को शक्ल लेती है, एक मूवमेंट। हम मेरी बात मुकम्मल होने दें, ठीक है। जब ऐसी तहरीकें चलती हैं और जब वो कहीं ना कहीं कामयाब होती है, तो जिस सिस्टम को वो नौजवान पलटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिस्टम इतनी जल्दी नहीं जाने जा रहा। वो बैरोक्रेट्स, वो टेक्नोक्रेट्स, वो तमाम फौजी लोग, वो सारा कैपिटलिस्ट, वो जागीरदार, वो जितने भी हैं वो लोग, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो नौजवान करने जा रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, जिस तरह वो करना चाह रहे हैं, वो देखें आपके पास पावर है ना, ये आपका माइक है, मैं छीनूंगा, आप कहेंगे ये मेरा है, आप मुझे नहीं इजी को देंगी, आराम से कभी नहीं आप देंगे। तो उस तहरीक में भी यही हो रहा है। फिर उस फैक्टर आते हैं कि उसमें उन तहरीक में ऐसे लोग छोड़े जाते हैं कि सबसे पहले तो वो मुफ्ती बानी की जो इनकी खुद की हसीना वाजिद की पार्टी का स्टूडेंट वीक था, उससे हमला करके ख्वाब ख़राब किया। उसके बाद आप पॉलिटिकली चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं, चीज़ों को गलत लेते हैं, उसके बाद मामला ठीक ख़राब होते हैं। अब ये कि हिंदू खड़े हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, तो एक फेर आता है। जहाँ भी तहरीकें चलती हैं ना, वहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको कोई ना कोई डर होता है और उनको डर दिया जाता है, और ये डर देता है रियासत के वो कारिंदे, वो आलाकार जिन्होंने उस सिस्टम को बचाना है, और उन्होंने कुछ ऐसा दिखाना है जिससे कोई ऐसी तहरीक जो कभी अभी कामयाब हुई है, लेकिन अगर उसके लोग ज़्यादा अपना पंख फैला रहे हैं तो उन्होंने उनको क्या करना है, दबाना है ना, तो वो कोई ना कोई ऐसी गेम खेलेंगे। उन्होंने जो वहाँ की यूथ चाहती थी वो हो गया, उन्हें अपना राइट्स नहीं मिल रहा था, जो एक कोटा सिस्टम चलता आ रहा था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया, वो इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार भी हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ का क्या कसूर है? वहाँ पे हिंदुओं के घरों को जो जलाया जा रहा है, उनकी ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। मैं मानती हूँ जब कभी कहाँ एक तहरीक उठती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ रिलीजियस, ठीक है, और ये जो कास्ट बुनियाद परस्ती, ठीक है, इस किस्म की सियासत पे मैं समझता हूँ ये सियासत ही है एक आम तबके के इंसान को तोड़ के रखने की, और उसको ये इस चीज़ से लाइल्म रखने की कि उसका असल दुश्मन कौन है। ऐसी पॉलिटिक्स ये काम करती है, ऐसी ही सियासी मजहबी लसानी और ये सारा काम। अब बात ये है कि ये मैंने आपको भी जवाब दिया है कि ये काम हो रहा है और हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ये भी है कि वही नौजवान उन मंदिरों, उनके घरों के बाहर पहरे भी दे रहे हैं, वो सड़कों पे वार्डरों की जगह काम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कैसे बना रहे हैं ये हुकूमत, अबूरी हुकूमत, आप पहले हमसे पूछेंगे। मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी को सेव किया जाए। देखे ना, ये है ना, तो देखे वहाँ पे जहाँ पे जब ऐसी तहरीकें और जहाँ पे कंट्रोल रियासत का कमज़ोर होता है, तो रियासत दो काम करती है। एक तो रियासत के वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह अपनी मर्जी से काम करना शुरू करते हैं, और दूसरा इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों के पीछे वो तमाम रियासत की ताकतें कार फरमा होती हैं कि ये हो, ताकि वापस लोग कहें कि यार उन्हीं गंदे लोगों को ये चीज़ें दे दी जाएं। ये होता है और ये होता आया है। आपको इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा है एब्सोल्युटली कि जुल्म नहीं हो रहा उन बेचारों पे, अगर हो रहा है तो इंतहाई ख़तरनाक है। ये तो थ्रू आउट बड़े शहर की पार्टीशन है, कॉलोनियलिज्म का स्ट्रक्चर है, साम्राज्य, अब बहुत लंबी वैसे चले जाएंगी। लेकिन बात इतनी है कि हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या अब नौजवान इतने कॉन्शियस हैं, क्योंकि वो उनके पीछे कोई एक्चुअल बताऊं तो उनकी खुद सियासत ख़त्म हो रही है, सिर्फ उनका जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। अब क्या करना है? अब उनके पास, अब असल में मसला ये है कि उन्होंने भी अपने पाँव पे खुलारी, उनके भी चोट आई है। उनको नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकली किस तरह स्टेबिलिटी लेके आनी है। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जागीरदारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम या जो इंटरनल कोल्ड वॉर है चाइना इंडिया, उसके बीच हमने कहाँ स्टैंड करना, हमने अपनी क्या शनाख्त बनानी है एज अ कौम। बहुत से सवाल है। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इस पर बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इतने मास लेवल की मूवमेंट को पॉलिटिसाइज मज़ीद करके कारकुनून लेवल पे गली गली जाकर इस सारे मामले को देखने की ज़रूरत है, और अगर वो ये कर पाएंगे तो ये तहरीक कामयाब है। अदरवाइज़ यही है कि कुछ ऐसी ताकतें जिन्हों का कुछ शायद
अपने पर्सनल गुस्से भी होंगे बाकी सियासी जमातों को लेकर, बाकी ये सारे मामले भी होंगे, तो ये सारे मामला चीज़ों को लेकर उनके गलत या सही हो सकते हैं, वो उनको यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तहरीक को यूज़ करके निकल के जा ये बताएं, क्या इंडिया को बॉर्डर खोलना चाहिए अपनी हिंदू कम्युनिटी को बचाने के लिए? देखिए ये मैं नहीं कह सकता, ये उनका फैसला है। वो पाकिस्तान से अगर वो होते शायद वो कब के खोल चुके होते, अगर वहाँ है तो उनको कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र आ रहे होंगे, तो वो कोई भी रियासत जो है वो ख़ास करके देखिए आपका और मेरा मुझे नहीं नज़र आती कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम एक पंजाबी कौम है, जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज़ बनने जाती तो अंग्रेज़ मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में गोरा, उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज़्यादा खिदमत कितने की है, पंजाबियों ने की है सबसे ज़्यादा, उर्दू भी नहीं बन पाते, अपनी मादरी ज़ुबान को इज़्ज़त भी नहीं दे पाते, एक अजीबो गरीब किस्म की कौम है, ठीक है, जिसको कोई सिर पैर ही नहीं नज़र आ रहा ना, कुछ भी नहीं पता लग रहा। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप और यही कमज़ोर कड़ी होती हैं कि यहाँ पे एक आम आदमी को बालियाँ बेचनी पड़ रही हैं, मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहे, पॉलिटिसाइज नहीं हो पा रहे, अपने एक एम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, अपने आम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह बिल्कुल सेम, और ये क्यों किया जाता है यहाँ पे पॉलिटिकली या कोई मसलक के हवाले से ग्रोहों को बहुत सी रियासती ताकतें सपोर्ट करती, क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने लूटना है और उनको लूटने में मदद यही ऐसे ही अनासिर करते हैं जिससे वो अपने आराम से लूटते हैं। और ये कोई मजहब में लगा हुआ है, कोई गुजर बरादरी, कोई बट थे, कोई जट थे, कोई शट थे, कोई इधर थे, कोई उधर, तो पंजाबी बैठे कश्मीरियों ने करवाया ना, कश्मीरी होके करवाया। हम पाकिस्तानी भी दूर की बात है, वो हंसी से इंसान नहीं है पंजाबी। तो बंगालियों के साथ भी, अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है, तो रियासत जो है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है, वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फ़लस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नज़र आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। सर मामलात को देखना पड़ता है, उन्होंने पोलिटिसाइज करना है इस चीज़ को कि देखें हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखे ये जो हसीना को हटाया गया है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं, तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, इसलिए नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, क्या करते हैं आप? मैं BSN कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद हिंदू कम्युनिटी पर जो वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, अब हज़ारों की तादाद में जो हिंदू हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। ये इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पहुँच गई है और BSF से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें इंडिया में एंटर होने दिया जाए, लेकिन BSF उन्हें समझाने की, रोकने की कोशिश कर रही है कि हम आपको इस तरह इंडिया में आने की इजाज़त नहीं दे सके। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से आपको आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि हम मानते हैं बांग्लादेश के इस वक्त हालात ख़राब हैं, लेकिन बातचीत से मसले को हल किया जा सकता है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो असल बात है ना वो ये है कि जिस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले हैं, उन्होंने ना एक इनकलाब की तरफ एक कदम बढ़ाया है, वो तो बांग्लादेश की जो कौम है उसके लिए तो एक खुश आइन बात है। लेकिन जो दूसरी बात जो आपने की है कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनके लिए जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको जो है उनको घर मस्मार कर रहे हैं, उनको जो है जुल्म सितम उन पर किया जा रहा है, बर्बरियत है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एकदम कदम नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक कौम जो है ना अगर वहाँ पे कोई रह रहा है, जैसे हमारे जो है जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बात ये की थी कि जहाँ पे जो अक़लियत है ना उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी बांग्लादेश को एक नेशन के तौर पे जो है ना एक कौम का सबूत देते हुए उन्हें ये करना चाहिए था कि जो अक़लियत है वहाँ उनको तंग नहीं करना चाहिए था। और ये हमारे मुसलमानों की रविश भी है। आप हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देख लें, फिर हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और जो है जिस तरह हमारे जो फ़ातिहीन जितने भी गुजरे हैं उन्होंने जो भी जगह फ़तह की है, जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो है जो उनकी अक़लियत थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने कोशिश की है कि अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पहली प्रायोरिटी उनकी वही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो है पहले बांग्लादेश को उनको जो है पनाह देनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। बाकी जो कुछ होता रहा है, इनकलाब है, वो तो मतलब
एक मुल्क के लिए वो ज़बरदस्त बात है। लेकिन आप देखें ना कि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को ये फील हो रहा है कि हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए पिछले कई दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए, वहाँ पे जो हालात हैं, बदअमनी फैली हुई है, हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को आग लगाई जा रही है। उन्हें नहीं पता कि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, लिहाजा इसलिए वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं और किसी तरह वो चाहते हैं कि इंडिया में एंटर हो जाएँ, और उन्हें शायद ये लगता है कि इंडिया में जाने से ही वो ख़ुद को महफूज फील करेंगे और उनकी जान बच जाएगी। देखिए जी, ये इस तरह तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं, मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता। उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफगान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। फिर पाकिस्तान जो है उनको इधर जो है हमारे यहाँ दहशतगर्दी और जो है इस तरह के ब्लास्ट होना, फिर पाकिस्तान जलील हो गया उनकी वजह से। तो पाकिस्तान ने जो है फिर ये आपने पिछले साल देखा था, पाकिस्तान ने उनको फिर जो है मूव बैक किया था। और देखिए उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात और ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए कि हमने अफ़गानियों को जिनको पनाह दी, हमने उन्हें जाने का कह दिया। देखें जी, पहले हमने उन्हें पनाह दी, हमने इस बेस पर पनाह दी थी कि भाई जब आप लोगों के हालात सही हो जाएंगे तो आप लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने कारोबार सेट किया, उन्होंने यहाँ पे जो है अपना एक निज़ाम बनाया। तो जब पाकिस्तानियों ने तो अपनी, सबसे पहले तो पाकिस्तान है ना, हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम जो है किसी भी मुल्क के लोगों को यहाँ पे पनाह देकर हम कहें कि भाई हम इनको सिक्योरिटी भी हम इनको फराहम करेंगे, इनको जो है हम घर भी फराहम करेंगे, हर चीज़ होगा, हमारे कारोबार पर भी कब्ज़ा कर लें। फिर अगर हम उनको कहें कि भाई हमारे मुल्क के ये चीज़ हम मतलब आइन में नहीं है कि हम इस तरह कुछ करें, तो आप मेहरबानी करें, तो फिर वो हम पर ही चढ़ दौड़ें, तो ये मुनासिब बात नहीं है, ये गलत बात। मुद्दे पे वापस आते हैं। अब जो हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उस जुल्म और सितम की रोकथाम किस तरह की जा सकती है? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं मोहम्मद यूनुस, उनको भी मुखातिब करके कहा है कि इन चीज़ों को रोका जाए। इसराइल ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, अब UN भी जो है इसके खिलाफ बोल उठा है। तो क्या लगता है कि इन मामलात को रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि देखें बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे अगर माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह कुछ होगा तो तमाम मुस्लिम उम्मा पे बात आएगी। बिल्कुल ऐसा है। देखें जी, ये जो है पहली बात तो ये है कि इनको चाहिए कि डायलॉग से बातें हल होती हैं। जंग जो है वो किसी भी सूरत में मामलात का हल नहीं है। देखिए हिंदू कम्युनिटी का कसूर क्या है ना, पहले तो ये बताएं कि उनका कसूर क्या है। यूथ वहाँ की अपने राइट के लिए निकली, कोटा सिस्टम के खिलाफ निकली, उन्होंने जो चाहा वो अचीव कर लिया, सीना वाजी ने इस्तीफा दिया और वो चली गई। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने की वजह क्या है? उन बेचारे बच्चों को, उन खवातीन को क्यों जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन ये आपने कहा सीना वाजी, तो वो तो एक ऐसे समझे कि डिक्टेटरशिप वाला निज़ाम था ना, कि उन्होंने ऐसे समझे मुल्क पे एक हुकूमत छोड़ के दूसरी हुकूमत फिर उनकी, तीसरी हुकूमत छोड़ के चौथी हुकूमत फिर उनकी, जब से बांग्लादेश बना यही निज़ाम चला रहा है। तो उसने जो है उन्होंने अपने ख़ानदान का मुल्क समझ लिया। तो ये हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रही है। अक़लियत जो भी है वो हमारा इस्लाम, सबसे पहले हमें अगर बाकी चीज़ों को ना भी देखें तो हम इस्लाम को फॉलो करते हुए भी ये चीज़ को गौर में रखें, अपने उसमें रखें कि हमने अक़लियतों को जो जिस तरह भी हो उनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और उनका ख्याल रखना है। दूसरी बात आपने कहा ये किस तरह हल होगा, इसको जो है इंटरनेशनली देखा जाए तो ये डायलॉग के थ्रू हल होगा। जो है बड़े जितने भी मुल्क हैं, इंडिया जो है वो भी खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो कोई जमहूरी मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत वाला मुल्क है, कोई आम मुल्क नहीं है कोई। वो जो है उनको इंटरनेशनली इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए और उसको इंटरनेशनली बैठकर डायलॉग के थ्रू उसको हल करना चाहिए। जंग इस मसले का हल नहीं है।